Hello friends, welcome to Pro Talent and I am Nitin Parmar. I welcome you all to this important discussion. दोस्तों, we all know that ALET notification is out. The exam is going to take place in the month of May. May के महीने में as per their normal, you can say, method, they are doing this examination and then they are assuming the CLAT will also happen in the similar mode. We are waiting for the government to announce finally कि एग्जाम क्या होगी, बाद में पोस्टपोन होगी या नहीं होगी. दैट्स ऑल टुगेदर सेकेंडरी पार्ट. प्राइमरी हमें समझना है दैट आज हम बैठे हैं 19th दिसंबर के ऊपर. ओके, एंड our exam you can say may take place on 9th of May. ठीक है, और जैसे एलेट बोलता है 2nd of May. ये हमारे पास तय डेट है, फाइनल डेट्स है, ऐसा हम मान के चलते हैं. हमारे प्रिपरेशन में हमें पता चलेगा कि हम you can say हमारे पास रफली करीबन 5 मंथ्स का टाइम अवेलेबल है या 5 मंथ से थोड़ा सा कम टाइम अवेलेबल है. हम आज एक मिड टर्म रिव्यू के सिचुएशन पर बैठे हैं. मिड टर्म रिव्यू करने का मकसद ये है कि हमें पता चले कि मैं अभी कहां पर हूं. ठीक है, और फिर मुझे क्या चेंजेस करने हैं, क्या कोर्स ऑफ करेक्शंस करने हैं, वो मुझे पता होने चाहिए मेरी प्रिपरेशन में, सो दैट आई कैन पुश लॉट ऑफ स्टीम टू माय प्रिपरेशन. मैं अपनी मेहनत को और अच्छे डायरेक्शन में और लॉट ऑफ एनर्जी और फोकस के साथ कर पाऊं. दिस इज वेरी क्रूशियल. यस और नो. और दोस्तों, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बनता है कि सिंपली एक दिन बैठकर रिव्यू लेना, ओके, विल नॉट बी रियली इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो एग्जाम है उसकी जो तैयारी है उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हमसे एक्सपेक्ट करी जाती है. यस और नो. ऑब्वियसली ये एग्जाम ऐसी नहीं है कि कोई भी एक स्टूडेंट मुंह उठा के चला आए, एग्जाम देने बैठ जाए एंड कैन गेट अ वेरी गुड रैंक एंड कैन गेट वेरी गुड स्कोर. नो, this exam requires efforts. ठीक है, it can easily differentiate between someone who has put in efforts and someone who has not. Okay, ठीक है. Now the point is many times we feel कि भाई मैंने efforts तो बहुत लगाया, but we have to understand whether our efforts are efficacious in nature, effective in nature or not. This is very crucial. So we have to understand few things. द क्लैट प्रिपरेशन का जो कोर्स करेक्शन का माइंडसेट है, ठीक है, वो समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसकी प्रिपरेशन में क्या यू कैन से इनपुट आता है. अनलाइक योर स्कूल प्रिपरेशन, अनलाइक any other entrance examination preparation, this examination preparation is little different. Okay, ठीक है. For example, you can say if you try and talk about let's say JEE. Okay, so what happens, there are fixed syllabus. You have to go through those topics. With every topic, you solve few questions and you are done. Okay, if you talk about NEET, NEET, okay, then you have to complete certain syllabus. You have to remember a lot of things and it is done. Okay, but when we talk about examinations like CLAT, जहां कोई fixed syllabus नहीं है, yes or no, it is all about your decision making, your comprehension skill, your ability to reason out something and your ability to understand world around you is basically being checked. Yes or no? So therefore it is very important for us to understand कि nature क्या है एग्जाम का. ओके, और इसकी वजह से हमारी जो प्रिपरेशन है वो सही तरीके से चल रही है कि नहीं, उसको एसेस कैसे करें. Yes or no? This is very crucial at this juncture to identify, to assess कि हमारी प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही है कि नहीं. ठीक है, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली इस एग्जामिनेशन में 3 ब्लॉक्स है. पहला ब्लॉक विच इज लर्निंग थ्योरी, रीडिंग अ लॉट and developing conceptual part. Second part is an application and third part is practice, which is mock test. Okay, great. So what is there in terms of reading? बहुत बार स्टूडेंट्स, जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रॉपर होंगे, उनको लग रहा है कि भाई आई हैव रेड एवरीथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, मैं पढ़ चुका हूं.
yes or no, and thereby I know कैसे इसको आंसर करना है, ठीक है. The problem is many times we assume that we know it, okay, but in our heart we know that, look, when it comes to questions related to differentiation between ownership and possession, ठीक है, when it comes to a differentiation on, let's say, a kind of liability, when the differentiation is coming, you can say, with respect to identifying who has a liability, then we are little confused, ठीक है, हम confused रहते हैं. And therefore it is very important for all of us to understand that we need to develop our capability towards it. So we have to possibly read more, not reading the same material one more time. You may require some more material to read it so that you can understand, develop your understanding from a different sources. So ProTalent believes in, you can say, learning from various sources. ओके हमारे स्टडी मटेरियल में ही हम दो अलग अलग प्रकार के स्टडी मटेरियल देते, सेम कंटेंट बट कमिंग टू यू इन अ डिफरेंट सोर्स, सो दैट यू विल बी इन अ पोजीशन टू लर्न इट वेल. yes or no, this is very crucial. अच्छा, understanding, you can say, learning from a video is a very crucial part. Okay, so watching videos are also important. Now you understand all these things will take lot of time, है ना. अगर आप उसके लिए समय नहीं देंगे, अगर आप उसके पीछे एक लंबा समय नहीं देंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. टेकिंग नोट्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली this exam requires your understanding of various nuances, ठीक है. develop a clear mindset with respect to your decision making skills, your reasoning ability, ठीक है. दोस्तों ये reasoning ability is not just coming by solving few questions. I know large number of students in last so many years are interacting with me and you can say telling me, sir मैंने बहुत सारे questions करे पर मेरे से output जिस तरीके से चाहिए reasoning में उस तरीके से नहीं आ पाता. वो बिल्कुल नहीं आएगा ना, because the real concept behind this is not known. Even if you know it, you have not practiced on it, ठीक है. You have not, you can say, practiced for many times on it. So one is getting a real knowledge and the other is after getting knowledge applying for it. This is very crucial, ठीक है. So दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको ये जो छोटे छोटे nuances है वो समझ में आना जरूरी है. The exam is all about, you can say, identifying, differentiating that top 1% और टॉप 2% ऑफ स्टूडेंट्स. ये एग्जाम नॉर्मल एग्जाम थोड़ी है कि जहां पे हम गए, हमने कुछ किया, अपने आप उसका मार्क्स आ गया और हमें कहीं अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल गया. नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 70,000 स्टूडेंट्स में से हम टॉप 2000 में आना चाहते हैं. रिजर्वेशन को अगर मैं अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करूं, सो आपको आपकी कैटेगरी में टॉप 1% में आना है. डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? नाउ टू गेट इनटू दैट टॉप 1%, to get into this top 1%, you understand the kind of capability you need to develop. Don't assume. I know there are so many students who are preparing with lot of assumptions. ओके दैट ओ इस एग्जाम में तो ऐसा ही आता है, अच्छा मैं ये करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे लिए इतना ही करना काफी है, मुझे इतना ही करना काफी है. कुछ भी चीज काफी नहीं है. Nothing is sufficient for your preparation. Okay, you need to put lot of things. Okay, so therefore it is very important for you to understand, to identify the real aspect of preparation. Okay, this is very crucial. Then once you develop this theoretical understanding, conceptual part, ठीक है, developing a good command over reading, आपके रीडिंग बहुत अच्छी होने लगी. Okay, when you read it, you don't skip words. Okay, when you read it, you don't simply read and you do not connect with the previous statements, not acceptable. So you read it, you go to the next sentence, you connect it with the previous sentence, you try and see important words in between, try and differentiate the various meanings in it. This is very crucial. ये capability आपने develop करी. Okay, then you go and apply this into many sectional tests. You have to take many sectional tests, ठीक है. On an average, I generally recommend appearing for 100 plus sectional tests. By appearing for sectional tests,
you can say improve on your speed, you improve on your, you can say, accuracy, you improve on your aggression, you improve on your decision making, you get exposed to varieties of the questions, trying and identify आप कहाँ गलत करते हो, yes or no. So this is very crucial, yes or no. And then you take a lot of mocks, ठीक है, you take a lot of mocks. Okay, now my dear students, ठीक है, in this CLAT preparation कैन वी गो लाइक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तभी मैं टेस्ट चालू करूं? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है. द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट रेड एनीथिंग, if they have not started anything and then they are now starting with sectional test or mock test, that is not acceptable. The students who have covered 60-70 percentage of syllabus or even 50 percentage of syllabus, they must start taking sectional test as well as full length test. Remember, the importance of sectional test is very much, you can say, very crucial part. Why it is very crucial? Because sectional test helps you to have a clear focus on that particular section. Okay, you are giving enough time to that section. In a full length test, sometimes because of lack of time management, you are not able to devote enough time on that particular section, so that you cannot understand how good you are with that section. Okay, while appearing for this sectional test improves that capability. You get right data. When you get right data, you will be in a position to, you can say, take right decisions. That is very important. Number two, you are exposed to different, you can say, types of questions. So in what type of questions you are committing wrong, कहाँ गलत हो जाता है आपसे, ये आपको सीखने को मिलता है. So this is very important. Okay, now this also takes a lot of time. आप समझिए, this is consuming lot of time. This will consume lot of time. On an average, एक टेस्ट के लिए 25 to 30 मिनट्स तो देना ही पड़ेगा. ये सुनो, तो अगर मुझे लीगल के 30 टेस्ट देने हैं, आई हैव टू डिवोट सो मेनी टाइम्स. ये सुनो, एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट मॉक टेस्ट्स, ओके, सो मॉक टेस्ट आई रिकमेंड टू अपीयर फॉर मिनिमम 35. दिस इज वेरी क्रूशियल. मॉक टेस्ट मिनिमम 35 चाहिए. तो उसमें ऑन एन एवरेज टेस्ट ऐसे, मतलब आज इच्छा हुई और मुंह उठा के आज हम टेस्ट के लिए चले गए, बिल्कुल गलत बात है. ऐसा करना ही नहीं है. टेस्ट देने से पहले 7 से 8 आवर्स का रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए, वेयर यू कम विद ऑल द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. जो आपने अपने डाउट्स लिखे होंगे, यस और नो, डाउट्स का जो लिस्टिंग किया होगा, डाउट्स का रिजोल्यूशन किया होगा, वो डाउट्स को समझ के आना पड़ेगा ताकि यू आर नॉट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक. yes or no, ठीक है. so thereby 7 से 8 hours का revision, so that is recalling yourself on a regular basis, on a weekly basis, telling yourself, look, I committed this mistake, I will not repeat it. Look, I committed this mistake, I will not repeat it. I actually see all those mistakes in front of me. This is very important. And then I do a postmortem of 3 to 4 hours. So on an average, आप देखिए 7 से 8 घंटे का रिवीजन, ठीक है, 2 hours का पेपर, ठीक है, एंड 4 hours का पोस्टमार्टम. ऑन एन एवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट 14 hours आर डिवोटेड फॉर वन टेस्ट. यू अंडरस्टैंड दिस? 14 घंटे फॉर वन टेस्ट. सो इफ यू ट्राई एंड कैलकुलेट दिस नंबर ऑफ आवर्स, दे आर ह्यूज. they are huge. It is now a very crucial time where you have to understand कि अब आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, प्लान करना पड़ेगा. अगर आप प्लान नहीं करोगे तो दिक्कत होगा. प्लान करने में यू नीड राइट डेटा. यस और नो, राइट डेटा एज्यूम कि आप कहां अच्छे हो, कहां गलत हो. यस और नो, एंड फॉर दैट पर्पस दिस वीडियो इज ओके. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू नो दैट व्हाट यू हैव टू डू, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपको थियोरी, रीडिंग, कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत समय लगता है, ठीक है, बहुत पेशेंस से, शांति से, धीरे धीरे उस चीजों को करना पड़ता है. अचानक से एक दिन में कभी आने वाला नहीं है, ठीक है. इट टेक्स टाइम. ओके, सिमिलरली प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस विल टेक टाइम. सिमिलरली मॉक टेस्ट विल टेक टाइम. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कितने समय की तैयारी आपको करनी बाकी है. एज्यूम, हैव अ टारगेट कि भैया आप 31 मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट करो.
कुछ अच्छे बच्चे होंगे, दे मे बी थिंकिंग भाई 20th फरवरी तक मैं मेरा सिलेबस कंप्लीट करूं। कुछ लोग ने टारगेट रखा होगा 31 जनवरी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट करूं। आपका टारगेट जैसा भी हो, आप सबका प्रिपरेशन लेवल अलग अलग होगा, ठीक है, बट पेशेंस रखिए, हड़बड़ाहटी न रखे, हैव अ प्रॉपर प्लान, उस मुताबिक दिन के समय डिवोट करिए, ठीक है, फिगर आउट क्या स्पीड चाहिए, ठीक है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली एसेस योरसेल्फ इन अ राइट मैनर। एक टेस्ट से असेसमेंट नहीं आएगा, ओके, सो देयरफॉर ProTalent has come out with a very good thing called CLAT Hurdle. Yes or no? CLAT Hurdle will give you so many tests over a period of time. आपके पूरा हफ्ता पढ़ाई चल रही है, आप रोज रोज टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो आपका रोज रोज का टेस्ट will be, you can say, giving you a direction कि भैया आप रोज आपका मूड अलग अलग होगा, रोज मतलब इतने दिनों में आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग अलग होगा, हर दिन आप अलग अलग तरीके से शायद सोचते होंगे, तो जो आपका स्कोर आएगा वो एक एवरेज स्कोर बनेगा। ये सुनो, आपको उसको नोट करना है। ये सुनो, आपको करना ये है कि भैया मैथ्स है, ठीक है, या लीगल है या जीके है, तो आप क्या करोगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेक्शनल टेस्ट में आपका एवरेज स्कोर क्या रहा। ये सुनो, आप पूरे एक महीने में 4 टेस्ट दोगे, 4 सेक्शनल टेस्ट, 4 टेस्ट का एवरेज क्या आया, ओके, अगर एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे आया, दैट मींस दैट्स अ वीक एरिया, यू मे बी थिंकिंग आई एम डूइंग गुड, अगर वो अच्छा आया, ठीक है, सो दैट इज वेरी गुड, आइडेंटिफाई क्या कारण से अच्छा आया, ओके, सो दोस्तों इट इज वेरी क्रूशियल कि ये मिड टर्म रिव्यू को बहुत सीरियसली ले, ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू टेक अ प्रॉपर रिव्यू। रिमेंबर, it is a time to sharpen your excel, okay, sharpen your x so that you are able to manage your further, you can say, preparation। अगर आपने अभी अच्छी तरीके से इन टेस्ट को लिया नहीं, अच्छी तरीके से उसको पोस्टमार्टम नहीं किया, उसकी तैयारी प्रॉपर करके नहीं आए हो, और बस फॉर द सेक ऑफ अपियरिंग फॉर सच काइंड ऑफ फ्री टेस्ट यू आर अपियरिंग फॉर इट, इट इज नॉट डन, it is not done, okay, so I have seen so many students, कोई काशीपुर से है, कोई लद्दाख से है, ठीक है, कोई सिकंदराबाद से है, कोई कोची से है, कोई जयपुर से है, ठीक है, कोई भुवनेश्वर से है, कोई रांची से है, ठीक है, बहुत अलग अलग जगहों से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक उसके अंदर रजिस्टर कर चुके हैं, एंड आई एम श्योर दिस विल बी अ वंडरफुल एक्सरसाइज, ठीक है, पॉसिबली इंडिया में इस तरीके की एक्सरसाइज इतने बड़े लेवल पे पहली बार हो रही है, सो इट विल गिव यू अ वेरी गुड बेनिफिट, बट रिमेंबर, ये बेनिफिट तभी हमें यू कैन से मिलेगा जब हम इसको सही तरीके से यूज करेंगे, ये सुनो, और उसके बाद उसके ऊपर जो कोर्स करेक्शन करना है वो हम कर पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस क्लैट हर्डल इज एन एक्सरसाइज टू टेक अ रिव्यू ऑफ द एंटायर प्रिपरेशन व्हाट वी हैव डन सो फार, एंड देयर बाय इसके बाद आगे क्या करना चाहिए, क्या कोर्स करेक्शन करने चाहिए, खुद को समझने के लिए है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यस, समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर दैट यू हैव दिस माइंडसेट एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ओके, ग्रेट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रजिस्टर फॉर क्लैट हडल, उसका जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लीज उसको देखिए, इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।